المظلومين المنتقدين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان مذہب ملت، برادران ایمانی، قدیمی جلوس محرم کی 7 تاریخ بہت ہی قدیمی جلوس ہے یہ، اور عرصوں سے یہ جلوس اسی تاریخ پر اپنے قدیم راستوں سے ہوتا ہوا یہاں تک پہنچتا ہے. اور آپ حضرات ہر سال کی طرح انشاء کی آپ حضرات اکٹھا ہوتے ہیں. کیوں اکٹھا ہوتے ہیں؟ یہاں پر کیوں آتے ہیں اس تاریخ کو؟ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، لوگوں کا جذبہ ولولہ پڑھنے لگتا ہے. ابھی ذی الحجہ کا مہینہ تکمیل ہونے والا ہوتا ہے. جو لوگ پردیس میں ہوتے ہیں وہ لوگ وطن جانے کی تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے وطن پہنچے، اور وطن پہنچنے کے بعد وہاں پر ہم محرم کریں. ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی سفر میں ہوتا ہے تو اس کا اپنا وطن یاد آتا ہی. اور میں نے جو آئے کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، زیادہ دیر آپ کے خدمت میں حائل نہیں ہوں گا، چونکہ جلوس کی جو مجلس ہوتی ہے آپ حضرات کو بھی انتظار رہتا ہے سال بھر کا کہ ہم اس دن کو انتظار کرتے ہیں کہ آئیں گے اور پوری رات ماتم کریں گے. زنجیر کا بھی ماتم ہوتا ہے، کمر کا بھی ماتم ہوتا ہے، اور آنکھ کا بھی ماتم ہوتا ہے. تو انتظار ہے کہ آپ حضرات کو پوری رات انجمن کی شکل میں نوحداری شہادوہ زنی سینہ زنی اور شبیداری کرنا ہے. مکمل طور پر زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، سورہ آل عمران، آیت کا نشان 33 نمبر کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنی محکم کتاب میں، قرآن مجید میں، کہ ہم نے مصطفیٰ قرار دیا، ہم نے چن لیا، آدم کو چنا، ہم نے نوح کو چنا. 2 شخصیتوں کا تذکرہ پہلی منزل میں ہو گیا. جب آدم کو چنا تو پہلے مسجود ملائکہ بنا دیا. دوسری شخصیت کا تذکرہ ہوا جب نوح کو چنا تو نبی اللہ بنا دیا. کیا سنا آپ نے؟ جب نوح کو چنا تو نبی اللہ بنا دیا. 2 شخصیتوں کا تذکرہ ہوا ہے. دوسری منزل میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میں نے آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا. پہلی منزل پر جب آدم کو چنا گیا تو مسجود ملائکہ بنا دیا. جب نوح کو چنا تو نبی اللہ بنا دیا. تو جب پہلی شخصیتوں کو چننے کے بعد انہیں مسجود ملائکہ بنایا، انہیں نبی اللہ بنایا. اب تو خاندانوں کا ذکر ہو رہا ہے، آل ابراہیم کا تذکرہ ہے، آل عمران کا تذکرہ ہے. تو ان سے تو کچھ بڑا کام لینے والے ہیں. ہمیں آل عمران پر نہیں جانا ہے، بس اپنی منزل پر لانے کے لیے آل ابراہیم کا تذکرہ کر کے آگے بڑھ جانا ہے. کون آل ابراہیم؟ ابراہیم اور ان کی آج، جن کا آج تک ہم لوگ درود بھیجتے ہیں. اور جب درود بھیجی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس طرح سے درود بھیج جیسے محمد اور آل محمد کو درود بھیجی جاتی ہے. اور جو آل ابراہیم میں سے ہو تو چونکہ آل ابراہیم پر درود بھیجی جاتی ہے تو
आले इब्राहिम पर क्यों दुरूद भेजी जाती है? कोई बड़ा काम किया होगा इब्राहिम और इब्राहिम की याद में, तभी तो उन पर दुरूद और सलाम है। क्योंकि सारे नबियों के लिए दुरूद नहीं है, सारे नबियों के लिए सलाम नहीं है, क्योंकि इब्राहिम खलील खुदा है। इब्राहिम ने बहुत से इम्तिहानात किए हैं और इस मंजिल पर आकर पहुंचे हैं। कितने सारे इम्तिहानात देने के बाद इब्राहिम औलाद आले इब्राहिम इस मंजिल पर पहुंचे कि उनके लिए दुरूद और सलाम रखा है। तो जब इब्राहिम और आले इब्राहिम के लिए दुरूद और सलाम है, तो इब्राहिम और आले इब्राहिम पर दुरूद और सलाम होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कुर्बानी दी थी। हज़रत इब्राहिम ने कुर्बानी दी थी, हज़रत इस्माइल ने कुर्बानी दी थी। क्या कुर्बानी दी थी? मैंने बाप में देखा है कि हज़रत इब्राहिम ने बाप देखा कि मैं अपने बेटे को मेरा के मैदान में ज़िबा कर रहा हूँ। बहरहाल वाकया सुना हुआ है, बहुत तवज्जो रखिएगा। वाकया बता के सुना हुआ है, बस एक मंजिल की तरफ जाना है। देखिए मुहर्रम है, गम का त्योहार। अब लोग इसे त्योहार नाम देते हैं लेकिन त्योहार है नहीं, त्योहार नाम देते हैं लेकिन त्योहार है नहीं। और उससे पहले जो वाकया हुआ है ज़िलहिज में, और ज़िलहिज का एक आता है मकसद, ज़िलहिज में भी कुर्बानियां होती हैं, वो है खुशी का मौका, यह है गम का मौका। अब इसे एक मिसाल के तौर पर मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब अल्लाह के दर्जात बुलंद फरमाए, क्या मिसाल दी है इन्होंने एक मिसाल दी इसी मौके पर, बस इसी में बातें मसाइल हो जाएंगे। इन्होंने एक मिसाल ये दी कि दो भाई हैं, दोनों में झगड़ा हो गया, तकरार हो गई। तकरार होने के बाद इतनी जबरदस्त तकरार हुई कि आना जाना बंद हो गया। लेकिन मिसाल सामने की है, कोई अपने ऊपर न ले, लेकिन एकदम सामने की मिसाल है। दोनों भाइयों में तकरार हो गई। इत्तेफाक से कुछ दिन गुजरे थे, एक दिन एक भाई के यहाँ शादी होने लगी। जब शादी होने लगी तो एक भाई ने दूसरे भाई को दावत नहीं दी। वो सोचने लगा कि हमारे भाई से रिश्तेदारी टूट गई है, आना जाना नहीं है, इसी बात पर इख्तिलाफ हो गया है। इख्तिलाफ हुआ, लेकिन उसने ये सोचा अगर हम शादी में इन्हें न बुलाएंगे तो चूंकि जो रिश्तेदार हमारे हैं वही रिश्तेदार इनके भी हैं, हमारे यहाँ आएंगे तो इनके यहाँ भी जाएंगे, हम होंगे शादी में बिजी और ये अपनी बात कहेंगे, हम न कह पाएंगे, ये अपनी बात कहेंगे, ये हम न कह पाएंगे। इससे अच्छा है हम भाई से क्यों न मेल कर ले। बहुत बहुत रखिएगा, हम भाई से क्यों न मेल कर ले। एक मरतबा वो अपने अजीज के पास गए, दोस्त के पास पहुंचे, मेरे दोस्त ऐसी बात है, मेरे भाई से इख्तिलाफ है, मैं चाहता हूं कि अपने बेटे की शादी कर रहा हूं, उसे क्यों ला लूं। दोस्त ने सुना, अरे वल्लाह क्या बात कह दी आपने, ये तो मेरे दिल की आवाज है, आप चले मैं भी साथ चलता हूँ। एक मरतबा उन्होंने साथ लिया, भाई के घर पहुंचे, तत्पर बात किया। जैसे ही भाई ने देखा, भाई से कहा, मेरे भाई मैं जानता हूँ इख्तिलाफ बहुत ज्यादा है, दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई है कि आना जाना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बेटे की शादी है, आप तशरीफ लाए। जैसे ये जुमला कहा, बड़े भाई थे एकदम गुस्से से भरे पड़े थे, और जो शुरू हुए उन्होंने ये कहा मैं नहीं जाऊंगा, आपने इसके नहीं बुलाया, आपने ये शादी की, आपने ये वलीमा किया, आपने ये दावत दी, आपने मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊंगा। जो साथ गए थे अब वो ठंडी बाल्टियों की पानी डालने लगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, इख्तिलाफ इस तरह से नहीं हुआ था, इख्तिलाफ दूसरी बुनियाद पर हुआ था, इख्तिलाफ उनसे हुआ था, आप नाराज न होइए, चलिए। बहरहाल इतना गुस्सा करने के बाद और जब ठंडे हुए, तैयार हुए चलने के लिए, उसके बाद अच्छा चलते हैं, लेकिन चलिए आज नहीं, फिर आएंगे हम, फिर आएंगे। छोटे भाई ने इशरार किया, नहीं अभी चलिए। बहुत जब दिन बढ़ा, एक मरतबा भाई तैयार हुआ, घर से निकलने के बाद कुछ दूर पहुंचे, फिर रुके, नहीं भाई आप जाइए, मैं तो नहीं आऊंगा, आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा। भाई ने फिर इशरार किया, नहीं भैया चलिए। जैसे ही घर के अंदर कदम रखने वाले थे, एक मरतबा पैर फिर रुके, नहीं आज नहीं, फिर कभी आएंगे। लेकिन फिर इस्लाम, अरे भाई अब तो इतना इशारा करते हैं, अब लड़ाई खत्म कीजिए, इनकी खुदूबत निकाल दीजिए, आइए अंदर तशरीफ लाइए। अंदर पहुंचे, अब चूंकि ये थे भाई, सगे भाई थे नहीं,
अपनी मंजिल पर आ गया। अभी तक जो खामोश थे इंशाअल्लाह महसूस होंगे, तो कोई अपनी जगह पर खामोश न रहेगा। ये एक मंजिल हो गई। अगर जब खुशी का मौका होता है तो लोगों को बुलाया जाता है, जब खुशी का मौका होता है तो लोगों को बुलाया जाता है। अब दूसरी मिसाल, एक भाई के यहाँ दूसरे भाई के आना जाना बंद था। एक मर्तबा एक भाई का बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। एक भाई का बेटा इस दुनिया से रुखसत हुआ। अब जैसे ही रुखसत हुआ तो दूसरा भाई अभी इस इंतजार में बैठा है। आपने वाकया देखिए गौर जरूर किया होगा और लोग गए भी होंगे। हर जगह ये वाकया मिलता है कहीं ना कहीं। बहरहाल बच्चे तो नहीं, नौजवान नहीं, लेकिन बुजुर्ग इस वाकये से जरूर कहीं ना कहीं वाकिफ होंगे और किसी न किसी मंजिल पर किसी का ना किसी का सुलह कराने जरूर गए होंगे। लेकिन आपको ये वाकया को जरूर मिलता होगा कि खुशी के मौके पर भाई ने भाई को मनाया हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ किसी बेटे के हम कहीं किसी बाप के हम मैयत हो जाए तो भाई ये नहीं कहता है कि चलो हमारे बेटे की चलो मिट्टी उठा दो, हमारे बेटे का जनाजा तैयार हो गया चलिए। अगर वो ना आए तो उसकी कमबख्ती होगी, बेशक अगर वो ना आए तो उसकी कमबख्ती होगी। बहरहाल वो वाक़े वो मंजर आपके सामने हमने अर्ज किया, पेश किया। अब इसके बरक्स देखिए, देखिए जिलहिज का मौका है, हज का वाक़या है, वहाँ नबी ज़्यादा बचा है, वो है खुशी का, इसलिए हज में बुलावा हुआ है। देखिए जहाँ पर खुशी का मौका होता है वहाँ पर इन्विटेशन दिया जाता है, वहाँ पर इन्विटेशन दिया जाता है। अगर किसी के यहाँ मृत्यु हो जाए तो इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए इन्विटेशन और इंफॉर्मेशन में यही फर्क है। खुशी में बुलावा होता है, खुशी में बुलावा होता है, और अगर गम हो जाए तो सिर्फ इत्तला दी जाती है। देखिए जिलहिज का मौका है खुशी का, वहाँ पर अल्लाह ने बुलाया है, इस सबको जाना बहुत जरूरी है। वाह क्या बात है, जिलहिज है। तकबीर अल्लाहु अकबर या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह नबी का बेटा बचा है, खुशी का मौका है, अल्लाह ने बुलावा भेजा, जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। लेकिन ये है गम का मौका। 10 मुहर्रम को नबी का बेटा शहीद हुआ है, इसलिए सिर्फ चांद मुहर्रम का निकल कर इत्तिला देगा, मुहर्रम का चांद निकल कर इत्तिला देगा। बहरहाल जो मैंने मिसाल पेश की बस आखिरी मंजिल, आखिरी मंजिल मैंने मिसाल दी ना। लेकिन कुछ मौके पर ऐसा होता है कि बात नहीं बनती है। भाई से भाई को अगर मिलाने जाए तो बात नहीं बनती है, और बहरहाल जब बात नहीं बनती है तो इख्तिलाफात कौन जरूर जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता है, मिलने के इम्कानात रहते हैं। अगर शादी में कोई भाई और भाई के यहाँ से ज्यादा इख्तिलाफ हो जाए, न जाए, इख्तिलाफ हो जाएंगे लेकिन पना नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी भाई के यहाँ कोई मिट्टी हो जाए और भाई न पहुंचे तो इख्तिलाफ इस हद तक पड़ जाएगा कि हो सकता है महशर में भी मुलाकात न हो। इख्तिलाफ इस हद तक पड़ जाएगा कि हो सकता है महशर में भी मुलाकात न हो। देखिए हज है खुशी का त्योहार, हज में नबी ज्यादा बचा है। अगर आप नहीं जाएंगे, बुलावा हुआ, नहीं जाएंगे तो पता नहीं होगा, बख्शिश के इम्कानात है। सुभान अल्लाह। कम करते बेशक बेशक मुहर्रम है कम की जगह, अगर यहाँ ना आए तो बख्शिश के इम्कान न होंगे। हो सकता है मोहम्मद महशर में कहे हमसे मुंह न झुकाना, और पर चलवा देना। यहाँ पर अगर कोई ना आया तो हो सकता है नबी कहे महशर में भी मुंह न दिखाना। बेशक यही वजह है
कि जब मुहर्रम का चांद नमदार होता है तो इधर जैसे ही मुहर्रम का चांद नमदार हुआ, मातमदार अज़ादार रहे, मातम के लिए इधर से कपड़े उठने लगे। ये कहाँ है कुरान में? हमें ये दिखाइए। ये कुरान में कहाँ लिखा है? हमें ये दिखाइए। अगर कुरान ही ठीक से पढ़ लिए होते तो आज ये नौबत न आती। इसलिए कुरान में ही कहा गया है कि देखो, जो जुल्म जिस पे किया जाता है उस पर रोना गुनाह नहीं है, रोना हराम नहीं है। छठे पारे की पहली आयत तर्जुमा सुन लीजिए। क्या कहा गया कि देखो, रोना है मगर मजलूम की हिमायत में रोना है। रोने से मनाती है, लेकिन अगर मजलूम की हिमायत में रोया जाए, मजलूम की हिमायत में गिरिया किया जाए तो फना नहीं बल्कि वाजिब है रोना। और गम मनाना भी इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए। बस आखिरी मंजिल, क्योंकि ये नबी का नवासा करबला के मैदान में पहुंचा। 28 रजब को मदीना छोड़ा था, 28 रजब को जब मदीना छोड़ा था। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का इस मौके पर, क्योंकि ये जुलूस सलीमी जुलूस है और कुछ ना अहद या कुछ ऐसे वाक़े भी पेश आ जाते हैं कभी कभार कि उसमें कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन इन्होंने हमारा साथ दे रखा है। और हमारा साथ नहीं दिया है बल्कि हुसैन के मानने वाले हैं, क्योंकि हुसैन इंसानियत के लिए थे, इसलिए सारी दुनिया आज हुसैन को मानती है। और ये हमारे कदम से कदम मिलाकर, क्योंकि ये कोई यादगार जो मनाई जा रही है, क्योंकि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, एक मजलूम की हिमायत में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, मजलूम की हिमायत में इकट्ठा हुए हैं। और एहतजाज करना भी हम लोगों का फरीज़ा है, हम लोगों की जिम्मेदारी है, इसलिए कि हम लोग अली के चाहने वाले हैं। बस आखिरी फिक्रा एक पैगाम देना है, क्योंकि यहाँ पर 4 तक आवाज जा रही है। हमारे हिंदू भाई भी मौजूद हैं, अहले सुन्नत भाई भी मौजूद हैं। देखिए, हम लोग रामनाई जिंदाबाद का भी नारा लगाते हैं, सिस्तानी जिंदाबाद का भी नारा लगाते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा इसलिए लगाते हैं क्योंकि इमाम हुसैन ने यहाँ आने की तमन्ना की थी। सुभान अल्लाह। हम लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारे ईमान का जुज़ है, इसलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है। और रामनाई सिस्तानी जिंदाबाद इसलिए कहते हैं, इसलिए वो हमारे अकायद है और हम उनके उस अकायद पर, उस पर अमल करते हैं। और यही वजह है जो फिलिस्तीन दुनिया में, बस आखिरी बात, फिलिस्तीन जिस पर कोई नहीं बोलता और लोग हमें ही कहते हैं, ईरान को बोलते हैं कि 56 ममालिक और 56 बहनों का वाहिद एक भाई है। यही वजह है कि हम लोग फिलिस्तीन की हिमायत में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो मजलूम है। आखिरी पैगाम से जानकर जाती है, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। बस आखिरी बात, क्योंकि अगर हम उनकी हिमायत नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इतना तो जरूर कर सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल न करें, आला का इस्तेमाल न करें, और उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। बस आखिरी बात, अगर उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी वहां पर ये बात मालूम हो जाएगी। इसलिए हज़रत इब्राहिम को बचाने के लिए एक परिंदा आ गया था और परिंदे से कहा गया था कि तुम कैसे बचा लोगे। तो मतलब उस परिंदे ने कहा कि देखो, हम बचा तो नहीं पाएंगे, लेकिन जब अल्लाह ये कहेगा कि तुमने क्या कहा, तो हम ये कहेंगे कि हम आग लगाने वालों में से नहीं थे, बल्कि आग बुझाने वालों में थे। सुभान अल्लाह। हमें इस बात का एतराफ करना चाहिए और इनके साथ खड़े रहना चाहिए। हाँ, 7 मुहर्रम इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। हाँ, अज़ादार में मजलूम करबला वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। बस आखिरी 5 मिनट और आपकी ज़हमत में तमाम कर रहा हूँ। आज 7 मुहर्रम की तारीख है और आज हमें उसका जिक्र करना है। हसन का यकीन, जिसे हम हजरत कासिम के नाम से जानते हैं। कौन हजरत कासिम?
वही हजरत कासिम कि जब इमाम ने पूछा कि ये बेटा कासिम कि तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है, अगर करबला वाले ना होते तो कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत का तर्जुमा ना हो पाता। एक मर्तबा कासिम ने कहा कि चचा, मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरीन है। करबला के मैदान में हर माए अपने बच्चों को, हर माँ अपने बच्चों को यही पढ़ा रही थी, यही सबक सिखा रही थी। देखो कल जब सुबह नमदार हो जाएगी तो तुम्हें हुसैन पर कुर्बान होना है। बेहद तुमने परवाह जनाब कासिम को समझा रही है, बस आखिरी मंजिल ये पेश करना है। शबे 9 मुहर्रम की रात, शबे आशूर, एक मर्तबा एक क़ैमा लगा हुआ है। उस क़ैमे में 3 लोग हैं, तशरीफ फरमा है। इमाम हुसैन क़ैमे के पास से गुजरे तो एक मर्तबा क्या देखा कि एक तरफ जनाब अली अकबर बैठे हुए हैं, एक तरफ जनाब अब्बास तशरीफ फरमा है, दोनों के दरमियान जनाब कासिम है। तीनों में कुछ गुफ्तगू हो रही है। एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने जनाब अब्बास से कहा, ए चचा अब्बास, सुबह नमदार होगी, बाबा पर हम जान कुर्बान करेंगे। एक मर्तबा ये बात सुनी, जनाब अब्बास ने जनाब अली अकबर ने कहा, हे बेटा अली अकबर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, पहले हम जान कुर्बान करेंगे, इसलिए कि हम तुम्हारे चचा हैं। एक मर्तबा ये गुफ्तगू हो रही थी। एक मर्तबा जनाब अली अकबर ने कहा, ए अब्बास, ए चचा अब्बास, अगर आप जाएंगे और इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो हो सकता है कि बाबा की कमर कमीदा हो जाए। जैसे ये फिक्रा सुना, एक मर्तबा जनाब अब्बास ने जनाब अली अकबर की तरफ देखा, ए बेटा अली अकबर, अगर आप मैदान में गए और तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे भैया हुसैन, मेरे आका हुसैन की बीनाई जाती रहेगी। जैसे ही ये जुमला सुना, एक मर्तबा जनाब अली अकबर, जनाब अब्बास का चेहरा जनाब कासिम ने देखा और देखने के बाद अभी 13 बरस का सिन है, अली अकबर की तरफ मुखातिब हुए, ए भैया अली अकबर, आप न जाइएगा, ए अम्मू जान आप न जाइएगा, ए अम्मू जान अगर आप गए तो इमाम की कमर कमीदा हो जाएगी। ए भैया अली अकबर, अगर आप गए तो चकी बीनाई जाती रहेगी। एक मर्तबा एक जुमला कहा जनाब कासिम ने, तसव्वुर कीजिए, जनाब कासिम ने एक फिक्रा कहा, ए चचा, ए भैया अली अकबर, हमें पहले जाने दीजिएगा, इसलिए हमारे जाने से चचा पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए हम यतीम हैं। जैसे ही ये जुमला कहा, एक मर्तबा हुसैन क़ैमे में दाखिल हुए, जनाब कासिम को गले से लगाया, ए बेटा कासिम, अपने को यतीम न कहो, अपने को यतीम न कहो। सुबह नमदार हो गई, जंग का बाजार गर्म हुआ, शहादत लोग नोश फरमाने लगे, असहाबो अइज़्ज़ा की बारी आती रही। एक वक्त वो भी आया, एक मर्तबा इमाम इजाजत नहीं देते हैं, तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है, एक वक्त वो भी आया, जनाब कासिम ने तावीज़ इमाम के खिदमत में पेश किया, भैया की तहरीर देखा, आंखों से लगाया, एक मर्तबा कहा मैं मजबूर हूँ। जैसे ही इजाजत थी, बस आखिरी फिक्र आप सुनिए, जैसे ही इजाजत थी, एक मर्तबा जनाब कासिम रुखसत होने लगे तो जनाब कासिम का जिस्म नाज़नी इतना ज्यादा नाजुक था कि जनाब कासिम के कोई ज़रा नहीं आ रही थी। एक मर्तबा ज़रा ना आई, एक कुर्ता पहनाया, जनाब कासिम को रुखसत किया, जैसे ही रुखसत किया फिर वापस बुला लिया, जैसे ही वापस बुलाया, एक मर्तबा कुर्ते को चाक किया, जनाब ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। एक मर्तबा भैया से पूछा, ए भैया हुसैन, आपने कासिम का कुर्ता क्यों चाक किया है? ये जुमला सुनना था। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, मेरा बेटा यतीम है, ये मेरे हसन की निशानी है, हो सकता है सालिम सर से कहकर इसे छोड़ दे, इसलिए कुर्ते को चाक कर दिया है। चाक कुर्ता यतीमी की निशानी है। और बाबेसा 3 दिन का भूखा प्यासा कब तक जंग करता, असके शानी के पेटों को फिन्नार किया।
مرتبہ وہ وقت بھی آیا قاسم گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دیا ماں ادرکنی، ارباب رضا حسین نے آواز سنی، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، جناب عباس ایک طرف سے، امام حسین ایک طرف سے، جیسے ہی یہ منظر فوجوں نے دیکھا بھگدڑ مچی، جناب قاسم بامار ایک مرتبہ ادھر کے گھوڑے ادھر، امام جب تک پہنچے جناب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا، آواز دی لیکن کوئی آواز پر لبیک نہ ہوا، امام نے کہا میں امام وقت کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ فضائے قاسم کے ٹکڑے بلند ہوئے، بالآخر قاسم کو لاش کے ٹکڑے گٹھلی بنا کر رکھی، ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، اے ام فروہ، ام فروہ نے اپنے لال کو دیکھا، شکر خدا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ